Everyone, welcome to my online class. Now, one more time, I am again with a new chapter of English literature. Chapter number 10. And the title of this chapter is what? The Mitten. And this is second video of this chapter. The Mitten. So, through this video, in first video we have done the reading practice, and through this video we will know about the story of this title. What is the meaning of this word mitten? Do you know what is the meaning of mitten? No. But I want to know that you that what is the meaning of this mitten. Mitten means gloves. Do you know what is gloves? Yes. Okay. I want to see you. These things. This is mitten. It means this is gloves. We wear these gloves to cover our finger and palm in winter season to protect from cold. ठंड से बचने के लिए हम लोग ये पहनते हैं. दिस इज ग्लव्स, दिस इज मिटेन. ये क्या है? मिटेन. यू कैन सी दैट दिस एरिया इज palm area, this finger, 4 fingers and 1 thumb. Okay, so this is mitten, and we will study about this mitten in this chapter. Okay, so you can see that the size of this mitten is so small, but we can fit our hand inside in this mitten easily. You can see that. Why? Because this mitten is made up of woolen cloth, and the features of woolen cloth is when we put something inside it, when we put something into it, it becomes bigger. For example, suppose that already I put my finger into this mitten. Now I am going to put this ball into this mitten. You can see that when I put this ball into this mitten, it becomes bigger, and many more things inside this mitten. So many places are available, and I can put so many things inside it. And when I put this thing, so many other things also, it will become bigger, so bigger. So these things we will study about these things. Okay, and so let's start this class. Mitten means what? Gloves. Mitten means gloves. GLOVES, gloves. ग्लव्स बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्ताना. बोलते हैं ना. And we use this mitten in winter season. Yes or no? Yes. To keep our fingers and palm warm. So, in your textbook, before you start this story, a section is before you read, and
And in this section, before you read, some pictures have given of some different types of woolen cloth or winter clothes, and you have to do the unscramble that later to make a meaningful word. Okay, for example, अनस्क्रैम्बल करना है, बहुत सारा लेटर लिखा हुआ है, मतलब अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करना है। स्क्रैम्बल का मतलब होता है अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। अरेंज इन अनस्क्रैम्बल मीन्स अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, WEERATS, ये स्क्रैम्बल है, ये स्क्रैम्बल है, मतलब ये अरेंज नहीं है, अव्यवस्थित है, इसको अनस्क्रैम्बल करना है। तो क्या लिखेंगे? अब ये लेटर इधर उधर लिखा हुआ है, इसको सही से अरेंज करेंगे इस लेटर को तो एक वर्ड बनेगा, WEERATS। So what is the correct word? When we unscramble this letter, we will write sweater. The word will make sweater. 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 Sweater is also woolen cloth. We wear the sweater in winter season to keep our body warm. Okay. So this is for example, and this section before you read this section, all of you will do it yourself. Okay. So let's come to this story. And one more thing I want to know you that actually this is a folktale. Folktale का मतलब क्या होता है? लोक कथा। This is a folktale. FOLK, folktale. Folktale means what? Folktale means in Hindi लोक कथा। Tale means what? Tale means story. Tale means कहानी, story. And folk means local, लोक कथा। Okay, लोक कथा बोलते हैं। तो this is a Ukrainian. What is the meaning of Ukrainian? Actually, Ukrainians means this word comes from Ukraine, and Ukraine is the name of a country. यूक्रेन जो है, ये वर्ड यूक्रेन से आया, जैसे इंडिया, तो इंडिया से इंडियन बना है ना, भारत से भारतीय, लाइक द सेम वे यूक्रेनियन कम फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन इज अ नेम ऑफ कंट्री। ओके, तो ये वहीं का ये लोक कथा का कहानी दिया, एडेप्ट किया गया है, ठीक है, दिया गया है, संग्रहित किया गया है या ग्रहित किया गया, जो बोल सकते हैं। सो नाउ कम टू दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so this story actually I surprised that this is a small things, and on these things a writer narrate or writer had written a story on this meeting. So now come to this story. While playing in the snow, a little boy lost his mitted. The first line of this story is while playing in the snow, a little boy lost his mitted. मतलब एक young boy और little boy, young boy और little boy. Snow means what? Snow means ice.
स्नो मीन आइस। तो व्हाइल प्लेइंग मतलब खेलने के दौरान एक लड़का, एक छोटा लड़का, लिटिल बॉय लॉस्ट हिज मिटेड। लॉस्ट मीन्स व्हाट? खो जाना, होना, या गुम हो जाना। ओके, तो खेलने के दौरान एक छोटे लड़के का ये खो गया। क्या हो गया? खो गया। और अब ये खो तो गया, अब ये मिटन मिला किसको? ये मिटन किसको मिला? तो अ स्मॉल आउल फाउंड द मिटन, या मिटन जो है एक आउल को मिला। आउल को मिला। अ स्मॉल आउल फाउंड द मिटन, उस यह मिटन किसको मिला? तो आउल मीन्स उल्लू को मिला। And the mitten is so warm. Warm means what? Gun. Already this is a winter cloth na. This is a part of winter cloth. So already this is made up of woolen. This is made up of woolen fiber. So already obviously the nature of the woolen fiber is warm. Warm means what? Gun. उलन क्लॉथ क्या करता है? हम लोग के बॉडी को गर्म करता है ना, तो ऑब्वियसली ये गर्म होगा। तो स्नो आइस लॉस्ट ऑल एंड वार्म। सो अ स्मॉल ऑल फाउंड द मिटेन इज सो वार्म। जब उल्लू ने इसे उठाया, उल्लू को ये मिला, सबसे पहले किसको मिला? उल्लू को मिला। जब उठाया उसे गर्म लगा। लेट मी स्लीप फॉर ए व्हाइल, तो उसने सोचा कि क्या मैं इसके अंदर सो सकता हूँ? क्या मैं सपोज दैट दिस इज आउट, उसने सोचा कि क्या मैं इसके अंदर जाकर सो सकता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड का समय था, बहुत ठंड लग रही थी। तो उसने सोचा कि क्या मैं इसके अंदर जाकर सो सकता हूँ। तो so saying he cuddled up to the so saying he cuddled up into the mitten. Okay. CUDDLED, cuddle का मतलब this is what? CUDDLED, cuddled. Pronunciation is cuddled. कडल्ड मीन्स क्या होता है? कडल्ड मीन्स गले लगाना। मतलब क्या किया? तो उल्लू ने बोला सो सेइंग, या बोल के ही कडल्ड अप इनटू द, ऐसे गले से लगा लिया, ऐसे सटा लिया। ओके, एज द ऑल वाज अबाउट टू स्लीप अ रैबिट केम बाय। जैसे ही वो इसके अंदर उल्लू जो है, ऑल जो है इसके अंदर सो रहा था, ऑन दैट टाइम अ रैबिट केम बाय, तुरंत से एक रैबिट आ गया। अब वो क्या पूछता है? अब वो ऑल से पूछता है, डियर ऑल, इट इज कोल्ड आउटसाइड, विल यू लेट मी इन। तो वह जो है रैबिट इज सेइंग टू ऑल कि क्या पूछता है? डियर ऑल, क्या बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्या तुम मुझे इस वीकेंड के अंदर ले सकती हो? मुझे भी सोना है। श्योर rabbit, we must share our thing. All ने क्या बोला? All replied that sure we must share our things. हाँ, तुम आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? इसके अंदर तुम भी आ जाओ सोने। तो इसके अंदर फिर कौन गया? सेकंड गया कौन? सेकंड गया रैबिट। ठीक है, ऑल तो पहले से था, दूसरा इसके अंदर रैबिट गया। अब जो है रैबिट ये बोला कि हमें अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए, बांटना सीखना चाहिए, आना चाहिए। एज द ऑल एंड रैबिट सेटल डाउन, जैसे ही अब दो हो गए, इसके अंदर दो हो गए। कौन कौन? तो एक जो है सबसे पहले कौन गया? ऑल गया। द सेकंड वन इज रैबिट। व्हेन दे सेटल डाउन ऑन दैट टाइम अ फॉक्स केम बाय। उसी समय कौन आ गया? फॉक्स आ गया, लोमड़ी आ गया तुरंत। अब लोमड़ी पूछता है, क्या पूछता है? कैन आई कम इन? कैन आई
कम इन, क्या मैं इसके अंदर आ सकता हूँ? यू, तब जो इसके अंदर रैबिट और ऑल थे उन्होंने क्या बोला? यू कैन कम इन, यू कैन कम इन, सी इफ यू कैन फिट इन। अगर आप अंदर आ सकते हो, लेकिन देख लो क्या तुम इसमें फिट हो जाओगे? अब इतना बड़ा फॉक्स इस छोटे से मीटर के अंदर फिट होगा? तो वही बोला, द रैबिट एंड ऑल said to what? Said to fox, you can come in if you can fit in. आप अंदर आ सकते हो, या तुम अंदर आ सकते हो, तुम इसमें फिट हो जाओ। फिट ही नहीं हो तो कैसे आओ? तो इसने ये कहा, the fox put his nose inside the मीटेन। सबसे पहले फॉक्स ने अपने नाक को मीटेन के अंदर, इसके अंदर पहले नाक को घुसेड़ा, मतलब नाक को डाला स्लोली, धीरे से। फिर he put his ears inside, फिर अपने कान को अंदर घुसाया। Then तब he put his head, फिर अपने माथे को, अपने सिर को उसके अंदर घुसाया। And finally, और आखिरी में he was in the मीटेन, और आखिरी में वह कहाँ था? मीटेन के अंदर। कौन? फॉक्स। Now this time there are three animals inside this मीटेन. First one, first is owl, second is rabbit, and third is bird, fox. There are three different size of animals in this small मीटेन. After fit inside this मीटेन by the fox, this मीटेन become bigger. ये बड़ा हो गया। And so students, this time bigger means what? बड़ा होना, बढ़ते जाना। And okay, so finally this is only three things. And now after this, as the three animals become comfortable means what? कंफर्टेबल, तीनों आराम से सो रहे थे, आरामदायक। कंफर्टेबल मींस आराम से, आराम से या आरामदायक। मतलब कंफर्टेबली मतलब आराम से सो रहे थे, किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम सोने में नहीं होता। कि there are three different size of animals put into this मीटेन, and all of them are sleeping inside this मीटेन comfortably, आराम से सो रहे थे। on that time a bear came by, उस समय भालू आ गया। अब भालू तो देखे ही है, भालू का साइज बड़ा होता है। अब वो क्या पूछता है? कैन आई कम इन, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई इतना छोटा है, इसमें ऑलरेडी three animals already fit inside this मीटेन. One more time, a big bear saying that can I come in, क्या मैं इसके अंदर आ सकता हूँ? भालू इसके अंदर आएगा? फिर देखते हैं। You can come in if you can fit in. फिर वो लोग तीनों जो who is saying these things, saying and one more time that by that animals which is sleeping, not who, which is sleeping inside the मीटेन। इस मीटेन के अंदर जो एनिमल सो रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर you can come in if you can fit in, अगर आप इसके अंदर फिट हो सकते हो आप भी आ सकते हो। when the bear got inside, जैसे ही बियर जो है इसके अंदर गया, the मीटेन become bigger and bigger। अब जो है, अब देखते हैं भालू का साइज, भालू इतना बड़ा। तो when the bear got inside, जैसे ही भालू जो है इस मीटेन के अंदर गया, the मीटेन become bigger, बड़ा होते गया, बहुत बड़ा हो गया। and then a mouse came by, उस समय एक चूहा आ गया। तो फिर चूहा पूछता है कैन आई कम इन, एक चूहा, छोटा सा चूहा के बोलता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उसमें से लोमड़ी क्या बोला? if I can fit it, अगर तो on that time replied
by the fox or either by the fox or by the bear. If I can fit it, you can also. जब मैं फिट हो सकता तो तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम भी आ जाओ. The mouse settled comfortably and suddenly. तो माउस भी जो है, छोटा चूहा भी जो है इस मीटर के अंदर चला गया. अब जो है सब सो रहे थे. उसी समय द बियर स्नीज्ड. बियर स्नीज मींस बियर जो है भालू जो छींक दिया. कैसे छींका? छींका. अब जैसे वो छींका क्या हुआ? द मीटर स्प्लिट. मीटर फट गया. जोर से भालू को छींक आ गया. स्नीज मींस व्हाट? छींकना. छींकना. द बियर स्नीज. बियर ने जोर से छींका. छींकने के बाद क्या हुआ? द मीटर स्प्लिट. स्प्लिट मींस व्हाट? स्प्लिट मींस, स्प्लिट का मतलब होता है फट जाना. स्प्लिट मींस फट जाना. भालू के छींकने से, अब इसके अंदर उतना एनिमल्स है, अब जानते हैं कि ताकत लगता है, जोर से झटका लगता है छींकने पर बॉडी को. तो छींकने पर भालू जैसे छींका तो क्या हुआ? द मीटर स्प्लिट इनटू मेनी पीसेस. छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया. छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया. एंड द एनिमल्स वेंट फ्लाइंग. और क्या थे? एनिमल जो थे उस समय वहां उड़ने लगे, उड़ रहे थे. वो फट गया, स्प्लिट हो गया, वो फट गया मीटर, और एनिमल जो है वो उड़ रहे थे. तो दिस इज ए स्टोरी. And one more page is left to complete this story, students. First of all of you will read this story carefully. Okay. In next time, I will explain first some remaining part of the story in next video. Thank you.